Hello everyone, let's talk about emails now. Email, as you know, is a short for electronic mail, which means that it is computer dependent communication system, wherein you can send one letter or one email to one person or 100 people altogether instantaneously within a second. You can send one letter to one person or to 1,000 person. It is something which is stored in your computer and can be read by you only when you turn on your computer, and it uses internet, and the text that you send to somebody is computer generated text. And you can also share your documents, you can share your pictures, videos, and a lot of other things as attachment in any email. And today, email has become one of the most major communication medium throughout the world, and because it has got many benefits. One benefit that stands out, or one benefit that is most important, is इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी फास्ट. आप बहुत जल्दी इस पर टाइप कर सकते हैं और बहुत ईजीली इसको सेंड कर सकते हैं. सेकेंड, इट इज़ डिलीवर्ड एट वंस अराउंड द वर्ल्ड, एंड उसके लिए आपको टाइम लैग नहीं होता है, आपको टाइम नहीं लगता है कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा फॉरवर्ड करने में. एंड थर्ड थिंग इज़ it is cost effective, which means the cost of distributing the information or the letter or the or any data is extremely negligible. मतलब कोई cost ही नहीं है अगर आपको कोई जानकारी या कोई information आपको किसी को pass on करनी है. And the person when he receives the information can respond to it immediately. आप जो भी इस information को receive करता है या letter को या mail को receive करता है वो immediately उस पर respond कर सकता है. It is easy to manage, and emails के लिए you require certain service providers, right? For example Yahoo और Google, आप इनकी मदद से अपना एक domain name बनाकर, या जिसको हम ईमेल एड्रेस कहते हैं, वो बनाकर आप ईमेल टाइप करना या भेजना शुरू कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट email etiquettes are. When I say email etiquettes, we are talking about the do's and don'ts, the rules, the codes that you need to follow for writing emails, right? So what are we going to talk about in this PPT? We are going to talk about the etiquettes that govern the email communication on internet, the rules about हाउ टू ड्राफ्ट एन इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट ईमेल. क्या रूल्स, क्या गाइडलाइंस हैं जिसके तहत आप एक ईमेल लिख सकते हैं और ताकि आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पहुंच जाए. एंड थर्ड इज़ द डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है ईमेल ड्राफ्टिंग के समय. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. वाई डू यू नीड गुड ईमेल स्किल. आप ये पूछेंगे कि भाई क्यों मुझे ये स्किल्स सीखने की ज़रूरत है. ये स्किल्स इसलिए सीखने की ज़रूरत है बिकॉज it is going to be useful for you. You are going to need them whether you are studying in college or whether you are working in some job after you finish your college. दोनों ही सिचुएशन में आपको ईमेल लिखने और रिसीव करने की ज़रूरत पड़ती है. सो व्हेन यू आर इन कॉलेज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, स्पेशली इन times like these where we are studying online and doing lot of correspondence through WhatsApp and through emails, you need to talk to your teachers and you need to get certain information from your teachers. This is where you need e-text. जैसे WhatsApp आप maximum use करते हैं, but बहुत लोग emails भी use करते हैं because emails are formal, first of all, formal means of communication, and emails are ईमेल गिव्स यू वैलिडिटी. वो आपको एक आपके मैसेज को एक वैलिडिटी देने का काम करते हैं. इट मीन्स दैट यू आर सीरियस अबाउट योर टेक्स्ट. दे आर फॉर्मल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज, एंड दे लीव अ वेरी गुड impression upon the receiver if you send a message through email. Second, third, that is impression is the second point. Third is if you want to get a good response
you need good communication or good email skills. For example, when you want to apply for a job and you are looking for a response for your application, there is a possibility that you might get a good reply if you have sent out a good application or a drafted application. व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ ईमेल ड्राफ्टिंग? अब उसके लिए आपको ये किस तरीके से ईमेल्स ड्राफ्ट किए जाते हैं, क्या रूल्स हैं, ये लेटर्स से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं और क्या रूल्स लगते हैं इसके लिए, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड देम. So what are the basic rules of email drafting? Let's talk about them first. Before we talk about the basic rules of email drafting, let me show you or take you to the actual email page and see what are the things that are there and that you need to understand. Let's see. Yeah, let me give me. So you can see my Windows, my desktop here. I'm going to just take you to my email page and show you the important things there. So yeah, this is how my inbox looks, and or email inbox looks. This is the email page. So you can see that there is a section called to, a field called to, जहाँ पर आप recipient का email address लिखते हैं जिसको आपको email भेजना है. Then there is CC. CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी. इसमें आप वो email addresses लिखते हैं जिनको आपको ये information टू में आप मेन रेसिपेंट आता है एंड CC में वो रेसिपेंट्स आते हैं जिनको भी ये इस ईमेल की जानकारी है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो जानकारी इन लोगों को भी होनी चाहिए, तो आप उनको CC में डालते हैं, विच मीन्स कार्बन कॉपी. BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी. अगेन हियर इन यू पुट इन दोज एड्रेसेस, दोज रेसिपिएंट्स with who you just want to share the information. You do not expect any response from them. You just want them to know that this is the correspondence you are having with the main person that you would put in to or in CC carbon copy. तो to and carbon copy main recipients हो जाते हैं, whereas BCC में सिर्फ वो लोग होते हैं जिनको ये correspondence के बारे में जो आप भेज रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. Which means that the people that you put in to field या CC field या BCC field, they all are going to receive your information. They all are going to receive this email from you. Only one difference is there between CC and BCC, that people that you would put in BCC or blind carbon copy are going to remain hidden. वो CC में जो लोग हैं या टू जो मेन रेसिपेंट है उससे हिडन रहेंगे मतलब वो उन लोगों को दिखेंगे नहीं. ये वाले ईमेल एड्रेसेस, ये वाले रेसिपेंट्स CC या कार्बन कॉपी से या टू जो मेन रेसिपेंट है उससे छुपा हुआ रहेगा. Alright, so now उसके नीचे the field is subject. What is the subject field? It is the same field that you put in your normal letters, formal या informal letters में जो आप एक subject की field बनाते हैं जिसमें आप letter का जो मुख्य subject है या विषय है वो लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से you would put in subject here. Then you can see the fifth field which is from, which shows your email address, that is the email address of the sender. Right, and this is this open field where my cursor is right now. जो आप देख रहे हैं cursor blink कर रहा है यहाँ पे. This is the main body of your email where you can type your email and can send it to anybody. For example, you can say dear sir, and whatever you want to say you can type in here, and then probably you can sign it off saying regards or whatever. We'll understand it later, and then you can sign it off, and then you just hit the send button and the email is going to go to all the people, one person or 100 people simultaneously, however number of people can be put in here. That's one major difference between letters and emails, that this is then e-text that you have generated, electronic text है जो आपने generate किया है, और ये instantaneously, immediately it can go off to, it can be sent off to 100 people. So this is something that you need to understand.
before you understand the basic rules of email drafting. So what are the basic rules of email drafting? First thing, be very sure about your subject line. There has to be a proper subject line, which means the subject line that I just showed you should be brief, to the point, and very clear. So for example, if you are applying for a job, you can just add, and the person to whom you are applying does not know you. You can start with your name. You can say Nidhi Nema, for example, that is my name. I can say Nidhi Nema, and then I can put a colon here, and I can say application for job. या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ, sorry, कि एप्लीकेशन फॉर जॉब पहले लिखा, फिर कोलन लगाया, एंड आई से निधि नेमा, विच मीन्स दैट आई एम स्टेटिंग द पर्पस ऑफ माई ईमेल टू द पर्सन, टू द रिसीवर, कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ एंड माई नेम इज़ निधि नेमा, कोलन लगा के आपने अपना नाम लिख दिया. दिस इज सफिशिएंट subject when you are writing an application for a job. This much of subject is sufficient. Do not add in extra information. Do not add in lengthy subjects to your emails. आप ये नहीं कह सकते I am writing and this is regarding the job application and my name is निधि नेमा. ये आप subject line में डालेंगे तो आपने almost letter ही डाल दिया subject line में, and this is not how you write a subject. For example, when you are applying for certain days, 3 days leave, and you want to write an application, what would be the subject line here? You can say application for 3 days leave. That's it. Yeah, you can alternatively say leave application. That's it. इतना brief, clear subject line डालने से the receiver understands कि what are you going to talk about. Then for example, when you are working and you want one of your colleagues to make a presentation या PPT अगर आप अपने colleague से expect करते, PowerPoint presentation आप चाहते हैं कि आपके colleague बनाए, तो आप you can say action, मतलब which means your email is asking or demanding certain action from somebody, so you can say action, and you can then put a colon and then say prepare PPT, which means आप उनसे एक्शन चाह रहे हैं और वो एक्शन क्या है, प्रेजेंटेशन का. दिस इज़ हाउ यू यूज सब्जेक्ट लाइन्स व्हेन यू आर मेकिंग और ड्राफ्टिंग ईमेल्स. ब्रीफ रखेंगे सब्जेक्ट लाइन, शॉर्ट रखेंगे सब्जेक्ट लाइन्स, एंड क्लियर रखेंगे. देन कम्स इन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशंस मीन्स जैसे आप लेटर में यूज़ करते हैं, फॉर्मल लेटर्स में जब आप अपने प्रिंसिपल को या टीचर्स को लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट? यू से रेस्पेक्टेड टीचर और रेस्पेक्टेड सर और मैडम. So respected is a salutation, right? संबोधन जिससे आप करते हैं. When you're writing to a friend, you say dear. When you're writing to an officer or somebody जिससे आपको कोई official काम है या कोई professional काम है, you say sir. You can also say dear sir. And most used salutation these days in all the professional official emails is dear only. तो डियर हम पहले इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते थे, लेकिन डियर का प्रयोग आप प्रोफेशनल मेल्स में अब करते हैं. उसके बाद इफ़ यू आर सेंडिंग आउट अ बिजनेस ईमेल या कोई काम से संबंधित ईमेल आप किसी को भेज रहे हैं, तब आप हेलो भी कह सकते हैं, राइट? सो दीज आर ऑल सैल्यूटेशंस. अब आप रिस्पेक्टेड सर कहेंगे, डियर सर भी कह सकते हैं, या डियर मिस्टर रोहन, जो भी आपका रिसीवर का नाम है आप वो नाम डाल सकते हैं. यू कैन से हेलो मिस्टर रोहन. दीज आर ऑल प्रोफेशनल और फॉर्मल वे ऑफ saluting, yeah, salutations. I am just going to give you basic rules of formal emails जो आप जॉब में या किसी बिजनेस से संबंधित काम के लिए जब आप ईमेल्स लिखते हैं, तब आप प्रोफेशनल मेल्स या ऑफिशियल मेल्स या फॉर्मल मेल्स लिखते हैं. मैं सिर्फ उसी पे फोकस कर रही हूँ इस पूरी एक्सरसाइज में. आई एम नॉट फोकसिंग एट इनफॉर्मल ईमेल्स दैट यू सेंड आउट टू योर फ्रेंड्स और फैमिलीज. ओके, सो आफ्टर सैल्यूटेशन आप क्या करते हैं? रिस्पेक्टेड सर अगर आपने लिखा, उसके बाद आप क्या करेंगे? 2 लाइन का स्पेस देंगे, एंड देन यू वुड से देन यू वुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज XYZ, माई नेम इज डॉक्टर निधि नेमा, माई नेम इज निधि नेमा, एंड आई एम राइटिंग दिस ईमेल फॉर, और आई एम राइटिंग फॉर
या आई एम राइटिंग दिस लेटर, दिस ईमेल विथ रिगार्ड्स टू, फिर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपने काम को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं या किस संदर्भ में ईमेल लिख रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर अपना आप काम बताएंगे कि आई एम राइटिंग फॉर द जॉब एप्लीकेशन, या दिस इज रिगार्ड्स विथ रिगार्ड्स टू द advertisement that I saw in the newspaper regarding the vacancy in your company, in your office, and my name is निधि नेमा। एंड फिर उसके बाद आप अपने आप को जो भी आपको बताना है आप वो बताते हैं। देन कम्स द बॉडी ऑफ द ईमेल। बॉडी ऑफ द ईमेल यानी आपने जब पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद आप फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे आप? लेट मी शो इट टू यू, वेट, ओके, वील टॉक अबाउट इट लेटर। उसमें आप सबसे पहले अपना पर्पस लिखते हैं, फिर किस कारण से आपने मेल लिखा है, और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिसीवर से, आप ये बताते हैं। वील टॉक अबाउट इट लेटर। देन कम्स इन क्लोजिंग रिमार्क वेयर यू क्लोज योर लेटर, क्लोज योर ईमेल, एंड यू से ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स और लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अगर आपका प्लान उनसे मिलने का है तो आप यू वुड से लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अगर आपका प्लान उनसे रिस्पॉन्स रिसीव करने का है, यू वुड से लुकिंग फॉरवर्ड टू hearing from you, or looking forward to your response, yeah, waiting for your response. Or you can just simply say thank you. If you just want to give the information, you can say thank you. Yeah, you can also say good wishes, and then you would sign off. Sign off मतलब जहाँ पर आप कहते हैं with regards, या sincerely, या yours truly, right? And then you add your name, your phone number, your designation, जो इस भी पद पे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो अपना पद लिखते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं। And last but not the least, if you want to attach something, you include the attachments also, and you give the information of your attachment in the email only, कि मैंने ये फाइल अटैच की है, मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच किया है, मैंने ये पिक्चर अटैच की है। So attachments are also to be explained. So this is the basic thing that you need to understand when you are going to draft any email. I'll just show it to you again. I'll just take you to my email again. So this is how it is. So for example, when you are writing to say xyz@gmail.com, this person becomes your receiver. You want to send the information to, या जिसकी हम हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपि, अगर आपको इस मेल की किसी को भेजना है तो you can say xyz@yahoo.com। ये अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है, आपने इनको भी जोड़ दिया। अगर आपको और किसी को BCC ब्लाइंड का और भी प्रतिलिपियाँ भेजनी है, आप you can add in their names in the BCC. Then you can say, for example, if you are applying for a job, you can say application for job, yeah, application for the post of senior manager, and you can say you can add in your name here, Nidhi Nema. Then automatically the inbox or the computer system is going to take the email system is going to take your name as the sender here, from में automatically आ जाएगा। फिर then you will begin with your salutation, dear sir. This is a very very formal salutation। 2 space देके आप नीचे से लिखेंगे, my name is Nidhi Nema, I am writing this email with regards to your advertisement in the newspaper for the post of senior manager। फिर आप स्पेस दे, यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया और आपने अपना थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आप क्यों लिख रहे हैं लेटर, और आपको ये
जॉब की जानकारी कहाँ से मिली. उसके बाद you can add in, start with the body of the message, that is the first paragraph, where you can say, you can talk about yourself, you can sell yourself, you can tell them why you are qualified, आपकी क्या qualification है आप ये बता सकते हैं. फिर आप क्यों इस जॉब के लिए उपयुक्त हैं, वाई आर यू सूटेबल फॉर दिस जॉब एंड वाई शुड दे कंसिडर यू फॉर दिस जॉब. एंड देन यू कैन टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, प्रीवियसली वर्कड एक्सपीरियंसेस. You can talk about the skills that you have, you can talk about all kinds of work that you have done that makes you fit for this job. हर तरह से किस तरीके से आप इस काम के लिए उपयुक्त हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि आई हैव वर्कड विथ, फॉर एग्जांपल आई हैव वर्कड विथ XYZ company for the past 3 or 10 years, you can say 10 years. एंड आपने जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे हैंडल की थी कि यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर the training, you were responsible for whatever you did with your previous company, that can come in here. Then you can also talk about your qualification, that you are that for example I can say I am PhD and I am NET and I am whatever degree that I hold, I can talk about it. Then I can say okay, these are the skills that I have, leadership skills, I have computer skills, I know these many languages. उसके बाद you can say कि if you get an opportunity to work with your company, you would bring in, or how much you can contribute to this organization. तो इस तरीके से आप अपने आप को सेल करेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में. एंड देन फाइनली so this would be your first paragraph. आप इस तरीके से फर्स्ट लिखते नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ. फर्स्ट, दिस कैन बी योर सेकेंड, एंड देन थर्ड वुड बी, एंड देन फाइनली यू कैन जस्ट साइन ऑफ. यू कैन से लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, एंड देन यू कैन से विथ रिगार्ड्स आप प्रेषित करते हैं, एंड देन यू कैन से sincerely, and then you can say, you can write in your name, your phone number, your email address, and that's it. And this is how you would send the email, and this is one complete format of the mail. You need to notice one most important thing, and that is everything is left aligned. मतलब सब चीज़ आपको लेफ्ट में रखना है. अनलाइक लेटर्स वेर यू पुट योर एड्रेस हियर एंड देन यू पुट समथिंग एल्स हियर, देन द बॉडी का इंडेंट बॉडी थोड़ा अंदर, मतलब लेटर का जो पूरा बॉडी है वो थोड़ा सा अंदर से शुरू होता है, उसके बाद फिर आपका ये सब कुछ राइट में चला जाता है. लेटर से डिफरेंट फॉर्मेट है. एवरीथिंग इज़ लेफ्ट अलाइंड, एवरीथिंग इज़ टू बी केप्ट ऑन द लेफ्ट मार्जिन, राइट? So this is how you work out, or this is how you draft an email. Let's just try to understand them with a few more examples. Okay, give me a second. Right now you need to remember certain do's and don'ts about the emails. First thing, all caps you should not turn on if you know little bit of computer. अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर जानते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैप्स में नहीं लिखना है. कैप्स में मतलब ऑल कैपिटल्स में, जैसा ये सेंटेंस लिखा हुआ है. द वे दिस सेंटेंस इज रिटन ऑन द स्लाइड राइट नाउ, ऑल कैप्स इज़ कंसिडर्ड शाउटिंग. इट मीन्स आप चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं. स्टॉप ओवर पंक्चुएटिंग. यू शुड नॉट बी पुटिंग पंक्चुएशन मार्क्स एज यू पुट इन द व्हाट्सएप टेक्स्ट. या व्हाट्सएप टेक्स्ट नहीं होता है ईमेल, या जो भी आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में या इंस्टा पे चैटिंग करते हैं उस तरह की चैटिंग नहीं होती है ईमेल. ईमेल इज़ अ वेरी फॉर्मल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वो परमानेंटली सेव्ड होता है जिसके पास भी जाता है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ड्राफ्ट योर ईमेल. पंक्चुएशंस लगाना ये आजकल बहुत फैंसी माना जाता है, बट in WhatsApp only, not in emails. So you should not be putting those exclamation marks जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो exclamation marks आपको नहीं लगाने चाहिए.
उसके बाद या किसी भी तरह के पंक्चुएशन मार्क्स आपको नहीं, टू मच ऑफ डॉट्स या टू मैनी कॉमास या टू मैनी एनीथिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल. नॉट यूजिंग कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन मेक्स ईमेल हार्ड टू रीड. तीसरा ये भी है कि बिल्कुल भी पंक्चुएशन अगर आपने नहीं लगाए, फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप्स या कॉमास, इनको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, या एक्सक्लेमेशन, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं क्वेश्चन मार्क्स जहाँ ज़रूरत है, या कैपिटलाइजेशन नहीं किया है, फॉर एग्जांपल आफ्टर फुल स्टॉप द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑलवेज कैपिटल, राइट. तो अगर वो कैपिटलाइजेशन भी नहीं किया है एंड विदाउट एनी कैपिटलाइजेशन या पंक्चुएशन के आपने ईमेल के सेंटेंसेस लिखे हैं, इट डज नॉट लीव अ गुड इम्प्रेशन. इट मेक्स द सेंटेंस वेरी हार्ड टू रीड. आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझ नहीं आता है. तो पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन का प्रॉपर रोल होता है. दैट रोल हैज़ टू बी अंडरस्टूड एंड फॉलोड. टेक्स्ट मैसेजिंग में जो आप व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजिंग में जो आप अब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये सेंटेंस में यूज़ किया है, आर को कई लोग आर सिर्फ लिखते हैं, ARE नहीं लिखते हैं, सिर्फ आर लिख देते हैं. या टू को TWO या TO2 को के लिए अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, सॉरी ये अपना डिजिट यूज़ करते हैं टू. वो योर के लिए YOUR को लिखने की जगह यू और आर लिखते हैं. दीज आर ऑल कॉन्ट्रैक्शंस, दीज आर ऑल टेक्स्ट को टेक्स्ट के अब्रीविएशंस कहलाते हैं. एंड दीज आर टू बी यूज्ड इन व्हाट्सएप ओनली, नॉट इन फॉर्मल ईमेल. ये बहुत ही इनफॉर्मल लुक देते हैं आपके मैसेज को, इनफॉर्मल बना देते हैं. ऐसा लगता है आप दोस्ती में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियस नहीं है. अवॉइड इमोटिकॉन्स. अगेन इमोटिकॉन्स लाइक दीज दैट यू कैन सी ऑन द स्लाइड, थम्स अप और इमोजीज जिसको हम कहते हैं, ये भी ईमेल में नहीं जाते हैं, बिकॉज दे गिव योर ईमेल अ वेरी लाइट एंड वेरी फ्रिवलस एंड वेरी हल्का लुक. Then acronyms are the short forms. For example, for your college, Kamala Nehru Girls College, you would use KNGC. Yeah, when you want to write Lieutenant Colonel, you can use LT, COL. These are all abbreviations, acronyms. ये भी they need to be explained. Nobody knows what KNGC is, or very few people know what KNGC is. So you have to write full form of the name, Kamala Nehru Girls College. Otherwise people will get confused और message effective नहीं होगा. Yes, last but not the least, after you have drafted your email, spell check करें and grammar check करें before you send it out. Before you hit that send button, proof read करें. कोई spelling mistakes तो नहीं है और कोई grammar sentence construction में तो problem नहीं है. Because the thing with email is once it is sent, it is saved with the receiver forever. ये कहीं नहीं जाता, ये हमेशा saved रहता है inbox में. So be very careful when you draft your email, right? And yeah, there are slang words जो बहुत youngsters में बहुत common है. For example, yo और या bro या cool या chill, come on को आप ये words slang words कहलाते हैं. These are to be avoided at all cost. You should be brief and balanced, which means you need to choose your words, your vocabulary. अपने शब्दों को बहुत carefully choose करने की ज़रूरत है. बहुत brief रहें. lengthy email messages में message lose हो जाता है, तो और बहुत short रखने से भी message पहुंचता नहीं है. तो it has to be balanced, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा. Direct language can sound harsher in emails than in person. जब आप फेस टू फेस बात करते हैं, इन पर्सन बात करते हैं, प्रोफेशनली जब आप बात करते हैं, जब आप जॉब में हैं या जब आप कॉलेज में अपने टीचर्स से बात कर रहे हैं या कलीग से बात कर रहे हैं, तब आप इन फेस आप बहुत डायरेक्टली टू द पॉइंट बात कर सकते हैं. मगर दिस वेरी टू द पॉइंट एंड डायरेक्ट लैंग्वेज कैन साउंड लिटिल हार्श. जब आप ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में ये टू द पॉइंट जब आप बात करने की कोशिश करते हैं तब आप थोड़े से हार्श लग सकते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू डोंट कम अक्रॉस your message does not come across as harsh. You should use formal or semi formal written language. Formal से आप semi formal तक ही जा सकते हैं, एकदम informal पे आप नहीं जा सकते हैं. Formal पे ही stick करेंगे. लैंग्वेज भाषा हर तरीके से लिखी जा सकती है, इज़्ज़त से या थोड़ा सा कैजुअली या एकदम ही कैजुअली. तो try not to be extremely casual, especially when you are writing formal emails.
and business emails. Avoid using jokes or sarcasm in email. Jokes आपको पता है क्या होते हैं, आप मजाक नहीं कर सकते हैं emails में, आप चुटकुले नहीं सुना सकते हैं. sarcasm यानी ताने भी नहीं मार सकते हैं, आप थोड़ा सा टॉन्ट मार के भी बात नहीं कर सकते हैं. हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर अ बिज़नेस पर्सन और आपका कोई सामान या आपने जो मंगवाया था वो अभी तक नहीं पहुंचा, तो आप ताने मार के उस पर सवाल नहीं कर सकते हैं या लिख नहीं सकते हैं. अवॉइड यूजिंग अब्यूजेस और बैड एंग्री वर्ड्स इन ईमेल्स. आप कभी भी अब्यूजेस यानी गाली गलौच नहीं कर सकते हैं और गुस्से में शब्द नहीं लिख सकते हैं. अदरवाइज बहुत ईजीली द रिसीवर कैन यूज़ योर ईमेल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, जहाँ पर वो आपको कोर्ट में घसीट सकता है कि आपने उसको गाली दी है. एंड कोर्ट इज़ गोइंग टू टेक इट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू. सो ट्राई बी वेरी वेरी केयरफुल when you draft an email. Be very respectful, be very polite in writing emails. Again same thing, proofread करना यानी spelling mistakes check करना, grammar mistakes check करना, sentence structure check करना, and this is what proofreading is. So proofread your emails. And whenever you are making a request, for example you want some response or something from somebody and you're writing an email, always end that email with a thank you. Thank you is the most polite way of ending or closing your email, so try to use it liberally. Most of the time when you receive a confusing or a unclear email, उसके रिस्पॉन्स में आप सीधे उसकी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं. इट्स अ गुड आइडिया दैट यू गिव द राइटर द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड यू कैन आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन. आप उससे पूछ सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग. मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया आपको क्या चाहिए, या आई एम नॉट क्लियर अबाउट योर ओपिनियन. Whatever, if there is something which is not clear in the email that you have received, it is a good idea that you ask for a clarification. You can also ask, especially in a formal business situation or professional situation, you can tell the person that okay, let's meet and let's clarify this issue if there is something unclear or something which can start a problem. So you can say कि okay, let's not talk on the email, let's meet in person and let's just clear it out. Okay, so now this is, let's take a look at the sample email messages. In this email there is a student who is asking his teacher or her teacher about something that she did not understand in the class or he did not understand in the class. इस email में कोई student अपने teacher से जो teacher ने class में पढ़ाया है उस पे एक question कर रहा है और जानना चाह रहा है कि वो जो word उन्होंने use किया था classroom में उसका meaning क्या है. Now the subject that he has put is technical reporting memo question. So this must have been the topic that the teacher taught in the class, technical reporting whatever. ये एक topic था जिस पे टीचर ने पढ़ाया है, उसके आगे उसने जोड़ दिया मेमो क्वेश्चन, यानी उस पे उसका क्वेश्चन है. Here he is saying dear Miss Gard. Miss Gard यानी फीमेल टीचर है और उन्होंने dear से संबोधित किया. Usually in our country India, when we are talking to our teacher we use the salutation respected. तो यहाँ पे this sample is taken from a western or a अमेरिकन क्लास. तो वहाँ पे वो अपने टीचर को डियर से संबोधित कर सकते हैं. हमारे यहाँ हम इसको रिस्पेक्टेड कहेंगे. डियर मिस गार्ड, आई एम योर स्टूडेंट इन टेक्निकल रिपोर्टिंग क्लास. अपने आप को इंट्रोड्यूस किया स्टूडेंट ने. फिर उसके बाद एंड आई एम कन्फ्यूज अबाउट टुडेज होमवर्क असाइनमेंट. मैं आपने जो आज होमवर्क का असाइनमेंट दिया उसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है. आई वुड appreciate if you could explain what you mean by an incident report. एक ये word है जो उसको समझ नहीं आया, incident report, जो उसने quote marks में डाला है, and he is asking कि can you please explain what this word means and what am I supposed to do in my homework assignment. बहुत politely, बहुत तरीके से and बहुत briefly without writing lengthy and unclear sentences, the person has come to the point and by using very polite language
he has put up his question. Now he's saying, is there a place in the textbook where I can find an example? आगे वो उसने ये बात भी जोड़ी है कि क्या कोई आगे ऐसी, क्या टेक्स्ट बुक में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इस इंसिडेंट रिपोर्ट का एग्जाम्पल मुझे मिल सकता है. उसके बाद वेरी पोलाइटली he is closing the email and saying thank you very much for your help. एडवांस में ही उसने टीचर को थैंक यू बोल दिया है हेल्प के लिए, एंड देन ही साइंस ऑफ सेइंग सिंसियरली, and then he writes his name Jim. This is a very good example of a very good sample email message, and this is how ideally email should be drafted. Now let's just take a look at some not so good emails, yeah, bad samples of emails. For example, here the same thing, the same message where the person has not understood the assignment, it can be written in a casual way or improper way like this. सब्जेक्ट नन, जहाँ कई लोग ये गलती करते हैं कि सब्जेक्ट फील्ड एम्प्टी छोड़ देते हैं. जब आप ईमेल्स लिखेंगे आपको सब्जेक्ट फील्ड खाली नहीं छोड़ना है, अदरवाइज द इनबॉक्स में कुछ समझ नहीं आएगा कि ये मैसेज क्यों आया है. इनबॉक्स में ही सब्जेक्ट लाइन आ जाती है, तो आपको वहीं पे स्टेट करना है. देन आई हैव, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई हैव कम्प्लीटली, उसने आई के बाद वी ई लगा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है आई हैव को. आई हैव बीन वर्किंग को भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है. स्पेलिंग्स अगर आप ध्यान से देखें सारी स्पेलिंग्स गलत है, कॉन्ट्रैक्टेड हैं, छोटी हैं. वर्किंग का स्पेलिंग होता है WORKING. द पर्सन हियर हैज़ यूज्ड वर्किंग इन अ कॉन्ट्रैक्टेड और कैजुअल वे. वर्किंग ऑन द होमवर्क विदाउट, ही हैज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है कि माई नेम इज़ XYZ एंड आई हैव बीन वर्किंग. और किस पर्पस से लिखा है ये भी नहीं लिखा है, सीधे वो डायरेक्टली टू द पॉइंट आ चुका है, सेइंग आस्किंग द टीचर कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन द होमवर्क फॉर लाइक 2 hours. आवर्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, आवर्स HOURS होता है, एंड आई डोंट गेट इट, और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया है. दैट दिस इज़ अगेन वेरी रूड वे ऑफ टॉकिंग कि मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है आपने क्या दिया है होमवर्क. व्हाट इज़ द पॉइंट एंड व्हाट एम आई सपोज टू डू, क्या पॉइंट है, मुझे करना क्या है, मुझे नहीं समझ में आया. आई हैव गॉट वे टू मच गोइंग ऑन एंड हैव टू वर्क टू नाइट, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, मुझे नहीं पता मैं इससे कैसे डील करूं. और विदाउट एनी साइनिंग ऑफ, विदाउट थैंक यू, विदाउट रिगार्ड्स, ही हैज़ जस्ट पुट इन हिज नेम जिम. This is a very casual, very rude, very non valid way of, not a good way of, or very improper way of writing any email. Now this kind of email, if it is sent out, would either not get a response or would get a rude response from the teacher, जहाँ पर टीचर easily स्टूडेंट को डांट सकता है because ये बहुत rude लग रहा है पढ़ने में. Another very improper email is this. Here in this second portion you can see, यहाँ पर एक बंदा जिसको जिसने सेल्स का, ये एक बिजनेस ईमेल है जिसमें उसको कोई जानकारी चाहिए और उसने पहले भी ईमेल लिखा था और उसको जवाब नहीं आया है. तो हियर ही इज सेइंग हे इज़ नॉट अ गुड सैल्यूटेशन. आप हे अगर कहते हैं तो आप बिजनेस ईमेल्स में या प्रोफेशनल ईमेल्स में आप किसी को हे से संबोधित नहीं कर सकते. हे सैल्यूटेशन इज़ नॉट अ गुड, इट इज़ अ कैजुअल सैल्यूटेशन, राइट. आप स्लैंग में जा रहे हैं, आप हल्के तरीके से बात करने की कोशिश करें. देन आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम यू, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. जस्ट वंडरिंग डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है. द पर्सन हैज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, द पर्सन हैज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड हिज सब्जेक्ट and he is just speaking his mind without any context. कोई context नहीं बताया है और सीधे वो अपनी point को रखने की कोशिश कर रहा है. Context setting is extremely important. आप किस संदर्भ में मेल लिख रहे हैं, क्या पर्पस है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आता है या फर्स्ट लाइन में आता है. Your purpose of writing the email has to come in. Why are you writing? Who are you and why are you writing? Introduce yourself and your purpose. This is called context setting. Context set करना important है. I know you are interested in increasing the conversation rate of your sales page. Let me know. Talk soon. This is very sketchy way of writing anything. बहुत स्केची तरीके से, ऊपरी तरीके से उसने लिख दिया है और जिसमें क्लियर क्लैरिटी से समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या
कौन है या क्या चाहता है. टॉक सून इज़ अगेन अ वेरी एब्रप्ट, या बहुत ही जल्दी से जब आप कोई चीज़ को एंड करने की कोशिश करते हैं, देन this is how you do it, and he has not put in his name at the end, so this is not again a good example of email. Now if this is one thing that you are asked most frequently in your exams, ki write or draft an email for जॉब एप्लीकेशन. सो इन दीज मेल स्पेशली जब आप कॉलेज भी ख़त्म कर लेंगे और आपको आप में से कोई अगर काम के लिए अप्लाई करना चाहता है, ईमेल आजकल मांगे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. मोस्ट ऑफ द हायरिंग मैनेजर्स या हायरिंग इंचार्ज या HR जिनको हम कहते हैं ना, हायरिंग ह्यूमन रिसोर्स पर्सन, वो अगर आपसे एप्लीकेशन मांगते हैं ईमेल में, तब आपको क्या करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल व्हेन यू से when I was talking about first paragraph, second paragraph and third paragraph, this is what I meant. First paragraph में it is very important to explain who you are, introducing yourself and why you are writing. You can mention कि you saw the job application, you saw the job vacancy in some newspaper or on a website, or somebody told you about the job requirement. कब वो एडवर्टीज़मेंट आई थी, ये भी बता सकते हैं. और सेकेंड वाले पैराग्राफ में you can sell yourself, you can pitch yourself, and you can say you can talk about why you should be considered, why are you fit for the job, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या स्किल्स कंपनी को या जिस भी जगह आप अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या स्किल्स उनको ऑफर कर सकते हैं. सो यू नीड टू हाईलाइट योर मोस्ट रेलिवेंट जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज योर अकम्पलिशमेंट्स. आपकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, आपने पिछली कहीं अगर जॉब की है तो आपके क्या क्या किस तरह का काम किया है आपने वहाँ पर, और क्या आपका कंट्रीब्यूशन रहा है पिछली जगह पर. अगर आपके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बात कर सकते हैं. और या आपकी कोई जो भी उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं. फाइनल पैराग्राफ में यू कैन थैंक द पर्सन ऑलरेडी, जिसको एडवांस में आप थैंक यू बोल सकते हैं. और उसके बाद कि उन्होंने आपका ईमेल को पढ़ा या कंसिडर किया. और ये भी बता सकते हैं कि आप अपना रिज्यूमे यानी एक बायोडेटा जो आप बनाते हैं जॉब्स के लिए, वो आपने अटैच कर दिया है ईमेल के साथ. उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं कि आप क्या क्या ईमेल में अटैच कर रहे हैं, एंड देन यू कैन साइन ऑफ. तो दिस इज़ हाउ योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ, स्पेशली फॉर एन ईमेल दैट इज़ meant for job application, looks like. So this is the sample. In the subject line you can just write in your name, whatever your name is. I have just taken a example name here, Ashi Pandey. You can say Ashi Pandey, software engineer position. This is the position for which Ashi Pandey is applying. Then she can start her email by saying dear Mr. or dear Miss or dear Sir, या अगर उस पर्सन का नाम आपको पता है, आप उसका नाम लिख सकते हैं. डियर मिस्टर राजेश यादव या डियर मिस्टर व्हाटएवर द नेम ऑफ द पर्सन इज, दिस इज़ योर सैल्यूटेशन. देन लीव 2 spaces एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ, एंड यू कैन से आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ जॉब ऑन योर पोर्टल, यानी वेबसाइट. पोर्टल मतलब वेबसाइट. आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ जॉब ऑन योर वेबसाइट in which I am interested in applying for the position ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट योर कंपनी, या जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो जॉब का एडवर्टीजमेंट नंबर भी आप डाल सकते हैं. एंड इट्स रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली मैचेस माई स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस. द पर्सन इज सेइंग कि आपने कि जो आपकी जॉब वैकेंसी आपने निकाली है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने मांगी हैं, उसके लिए मेरी क्वालिफिकेशंस और मेरा जो स्किल्स है, या जो मेरे पास जो भी हुनर है या जो भी मेरी डिग्रीज़ हैं, वो सब उस रिक्वायरमेंट को कम्प्लीटली फुलफ़िल करती हैं या कम्प्लीटली उसके साथ मैच करती हैं. विच मीन्स दैट आई एम मीटिंग योर रिक्वायरमेंट्स एंड आई एम एलिजिबल टू अप्लाई for the position, because whatever eligibility criteria you've set, I fulfill that criteria.
second paragraph or middle paragraph, I have recently graduated in software engineering from, फिर आप उन्होंने अपनी डिग्रीज़ के बारे में बताया कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है एस कॉलेज से, एंड आई एम करेंटली लुकिंग टू अप्लाई माई नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन रेप्यूट, और मुझे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी की तलाश है. एज अ क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई एम एडेप्ट मतलब मैं निपुण हूँ, या मैं हाँ निपुण हूँ, मैं गुण वो क्वालिटी रखता हूँ. आई एम एडेप्ट इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से संबंधित टर्म्स हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम में मैं ये काम जानता हूँ. एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट मैं करना जानता हूँ, एंड आई बिलीव दैट आई विल प्रूव टू बी एन एसेट फॉर द कंपनी. और मैं ये मानता हूँ कि जिस भी कंपनी में मैं जाऊँगा मैं वहाँ पे एक एसेट बनूँगा मतलब मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट करने की, अपना अच्छा योगदान देने की क्षमता रखता हूँ. प्लीज़ टेक अ मिनट टू गो थ्रू द अटैच्ड कवर लेटर एंड द CV इज़ करिकुलम वीटे, या जिसको हम बायोडेटा भी कहते हैं. For your consideration, it would be a pleasure if I can hear back from you regarding my job application. Already he's saying कि I'll be very happy if I get a response for you. इसको आप दूसरे शब्दों में भी ये भी कह सकते हैं कि looking forward to hearing from you, या looking forward to a response from you. और यहाँ पर वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि प्लीज़ आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कैन गो थ्रू माई CV, यू कैन गो थ्रू माई बायोडेटा. अगर आप मुझे कंसिडर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी. एंड देन ही कैन जस्ट साइन ऑफ सेइंग सिंसियरली, राइट इन हिज नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस. So this is how, and everything is left aligned, everything is set to the left margin of the email page, and the person can send the email like this. यहाँ पे आप attachment जो भी लगा रहे हैं, अगर आपने CV लगाया है, अपना बायोडेटा लगाया है, वो भी आप यहाँ पे mention कर सकते हैं कि I am attaching my, जैसे इन्होंने mention कर दिया है कि go through the attached cover letter and CV for your consideration. तो ये आप देख लीजिए, and this is how you would draft a एप्लीकेशन फॉर एनी जॉब. अब यहाँ पे मैंने एज एन एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दिया है. आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आप उस जॉब को मेंशन कर सकते हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंड द मेन आउटलाइन, द मेन फ्रेम ऑफ द ईमेल, एंड यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स, योर लैंग्वेज, एंड मैनिपुलेट एंड चेंज the message according to your requirement. Last but not the least, be very careful of these three things: phishing, spam and virus. Abhi I'm not sure how many of you are using the email on regular basis, but in case in future you decide to go in job, you would know that there are a lot of spam emails, there are a lot of phishing emails and a lot of viruses that emails can bring in. Especially जब आपको फिशिंग इज़ नथिंग बट एडवर्टीज़मेंट वाले ईमेल्स, जो प्रमोशनल ईमेल्स होते हैं, वो बहुत सारे हर दिन आते हैं आपके इनबॉक्सेस में. बी वेरी केयरफुल इन ओपनिंग दैम. स्पैम ईमेल्स आपको आते हैं, दीज आर ऑल्सो एड्स एंड स्कैम्स होते हैं. मतलब ये धोखा भी हो सकता है कि वेर इट सेज कि यू वन 1 crore एंड अप्लाई फॉर दिस, जो आप कुछ चीज़ों का लालच देते हैं, डिस्काउंट्स के ऑफ़र करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के ऑफ़र करते हैं. ये सब स्पैम मैसेजेस होते हैं विच डू नॉट कम इन योर इनबॉक्स डायरेक्टली, they usually go in your spam box. So you be very careful in opening them and do not get tempted or do not get fooled by them. इनके धोखे में आपको नहीं आना चाहिए. वायरसेस भी बहुत सारे आ जाते हैं, and you need to monitor and control your system, because once वायरस ईमेल्स के थ्रू भी चले जाते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं कोई गलत अननोन रेसिपिएंट का ईमेल तो आप खोल नहीं रहे हैं. नोन रेसिपिएंट के ही ईमेल्स आप खोलिए, उन लोगों के ही ईमेल्स आप खोलिए जिनको आप जानते हैं. एंड द बेस्ट आइडिया इज़ कि यू शुड डिलीट these emails without reading them. That's it. I just hope I have made myself clear.
And yeah, again, in case you have any doubt, you can reach out to me anytime. Thank you.